Now recording is on. Very good evening, friends. Yesterday we had a brief overview of SURFACE Act. In SURFACE Act, there are four parties. One is the borrower who has availed loan or credit facility and has given security. Second is the lender, who is also called the originator. So this lender or originator or secured creditor has given financial assistance to the borrower or obliger against the security. Now, this borrower or obliger is not paying back. What are the options available to the lender or originator or secured creditor or banker? He will transfer the secured assets to a special purpose vehicle. It is basically an asset reconstruction company regulated by RBI. Now, where from this ARC will get the money? ARC will issue security receipts to qualified institutional buyers. These qualified institutional buyers, which are defined in the Act, they will subscribe to the securities, and this money will flow to the lender or the originator, and the money flow will be complete. So this is basically the SURFACE Act. It talks of various rights and liabilities of the various parties involved, and there is another concept of central registry, similar to something we read in IBC regarding National E-Governance Services Limited, NESL. So the central registry is basically, it keeps record of the securitization of the assets. So this is what we briefly read about SURFACE. Alash. Not anyway. Renews. Okay. Now regarding this SURFACE Act, so this is an act to regulate securitization and reconstruction. Securitization means issuing securities to qualified institutional buyers. Reconstruction of financial assets means taking back the security which was given to the secured creditor or the banker or the financial institution by the borrower. And enforcement of security interest. Enforcement, it involves various steps like issuing notice to the borrower for 60 days or 90 days in case of debentures, claiming back the security, and then its subsequent sale or lease or assignment or whatever. So this is the basic framework of SURFACE Act. It deals with various things. First is the registration and regulation of asset reconstruction companies. So it talks of, anyway, I'm admitting all today. Let us see who plays the mischief. The Act deals with the following: registration and regulation of asset reconstruction companies by the Reserve Bank of India. First is this. Second is facilitating securitization of financial assets of banks and financial institutions with or without the benefit of underlying securities. So it facilitates securitization of financial assets, matlab creating security interest basically. Third is facilitating easy transferability of financial assets by the ARC to acquire financial assets, and so third function is facilitating easy transferability This we have already seen. So this talks of facilitating easy transferability of financial assets by the ARC to acquire financial assets of banks and financial institutions by issue of debentures or bonds or any other security. Then empowering ARCs to raise funds by issue of security, because money flow has to be complete. Money flow has stopped because the borrower
failed to pay. Now ARC comes in and ARC issues the security receipts to qualified institutional buyers. This is the basic framework. Then we have already seen all these definitions. It is basically divided into 6 chapters. First is formation of securitization or reconstruction companies, how these ARCs are formed, what are the powers of the board of directors or the persons involved, how they can be removed, how they can appeal. Second is recovery without interference of court. Court intervention is minimum in this case. Third is the framework for revival or reconstruction of the borrower's business. Fourth is the central registry akin to NESL in IBC. Fifth is qualified buyers, who are the qualified institutional buyers who can buy the securities of ARCs, and what types of security receipts can be issued. So this is the basic framework of SARFAESI Act. Some of the key definitions: asset reconstruction. Asset reconstruction means acquisition by any securitization company or reconstruction company of any right or interest of any bank or financial institution. Because banks are equipped to handle only deposits and loans. They are not equipped to handle asset reconstruction. So this work of asset reconstruction is assigned to specially formed companies which are regulated by RBI. So asset reconstruction means acquisition by any securitization company or reconstruction company of any right or interest of any bank or financial institution in any financial assistance for the purpose of realization of such financial assistance. And the term financial assistance, इसका क्या मतलब है? ये तो हमें मालूम ही है, लोन है ना, लोन और एडवांस, CC facility, anything. Purpose of acquisition by securitization is to realize such assets and not to stay invested. The purpose of ARC is not to stay invested or to become the shareholders of the company, but it has right to take over the management. It can even run the business subject to RBI's guidelines from time to time. Such realized amount should be held and applied towards redemption of investments and payment of returns assured to the qualified institutional buyers. So ARC is a company which is registered with RBI under Section 3. It is not a banking company, although it is regulated by RBI. It cannot carry out any other business other than securitization or reconstruction. Borrower is the person who has availed the loan. Default means, default here is defined in 2 ways. First is regarding debt. In debt, period is 90 days, and in case of other debt, it is 60 days. In case it is in respect of debt securities, you have to give 90 days notice. And in case it is any debt or any other amount payable to any secured creditor, it has to be first classified as NPA. उसको पहले NPA डिक्लेयर करेगा बैंक, या यहाँ पर वर्ड यूज किया गया सिक्योर्ड क्रेडिटर. सिक्योर्ड क्रेडिटर क्यों यूज किया गया? वो बैंक भी हो सकता है, वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है. तो वो NPA डिक्लेयर करेगा. 13(2) में 60 दिन का नोटिस देगा बोरोवर को और उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगा. ठीक है. डिबेंचर्स के केस में 90 डेज का नोटिस देगा. ठीक है. कंडीशंस फॉर कॉलिंग डिफॉल्ट. पहला तो ये देखना है कि ये डेट और एनी अदर अमाउंट, इस केस में क्या होगा? द अमाउंट ड्यू शुड बी इन द, एक तो ये कि डेट की नेचर का होना चाहिए. ठीक है. फिर सिक्योर्ड होना चाहिए. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इसमें नहीं आएगा सरफेसी में. फिर उसको NPA क्लासिफाई करना जरूरी है. ठीक है. और अगर डिबेंचर या बॉन्ड्स है तो उसमें 90 डेज का नोटिस देना जरूरी है. ठीक है. और डेट का क्या मतलब है? डेट का ये मतलब है जो सेक्शन 2G में दिया गया RDB एक्ट में. ठीक है. और अनपेड पोर्शन उसमें आ जाएगा डेट में. और क्या आ जाएगा? कोई भी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट. ठीक है. ये सब इसमें आ जाएगा. फिर फाइनेंशियल एसेट का क्या मतलब है? फाइनेंशियल एसेट का मतलब है इट मींस डेट और रिसीवेबल्स. इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ये है कि जो भी एसेट, एन एसेट विच इज नॉट ए फाइनेंशियल एसेट, इट कैन नॉट बी सिक्योरिटाइज्ड, एक्वायर्ड और ट्रांसफर्ड अंडर दिस एक्ट. ठीक है. तो सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स को ही सिक्योरिटाइज, एक्वायर या ट्रांसफर किया जा सकता है इस एक्ट में. ठीक है.
तो इसमें सब मॉर्गेज, चार्ज, हाइपोथिकेशन, बेनिफिशियल इंटरेस्ट, ये सारे फाइनेंशियल एसेट्स में आ जाएंगे। ठीक है, फिर एनपीए क्या है? एनपीए means an asset or on account of a borrower which has been classified by bank or financial as substandard, doubtful or losses। ठीक है, आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से हमें पता ही है, जो लोग भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या अकाउंट्स में डील करते हैं उनको पता है कि एनपीए क्या होता है। ठीक, इट्स अ वेरी रेगुलरली यूज टर्म। अब इस केस में क्या हो रहा है कि इन केस in case such bank or financial institution ठीक है, तो अब इसमें डिपेंड करेगा ये बैंक है या कोई और बॉडी है। अगर कोई और बॉडी है तो उस वहां पर जो भी क्लासिफिकेशन है उसका, और अगर बैंक के केस में जो आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से चलेगा। क्वालिफाइड बायर कौन है? यहाँ पर बात आती है क्वालिफाइड बायर की, भाई उसको सिक्योरिटीज आपने इशू करनी है। तो ये क्वालिफाइड बायर कौन है? एक मिनट, हम्म तो क्वालिफाइड बायर कौन है? क्वालिफाइड बायर मीन्स ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ट्रस्टी और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी which has been granted a certificate of registration under subsection 4 of section 3, or any asset management company making investment on behalf of mutual fund or pension fund or foreign institutional investor। ठीक है जी, रजिस्टर्ड अंडर दी सेबी। ठीक है, तो ये सारे जो है ये क्वालिफाइड बायर में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें एक नोट दिया हुआ, नोट क्या है कि इन द इवेंट ऑफ नॉन रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, qualified buyers holding not less than 75% security receipts shall be entitled to call a meeting of all the qualified buyers, and every resolution passed in such meeting shall be binding on the company। ठीक है, अब इनको क्या मिला हुआ है? क्वालिफाइड बायर्स को तो आपने सिक्योरिटी रिसीट्स दे रखी है, इनको पैसे तो मिले नहीं। ठीक है, अब वो जो फाइनेंशियल एसेट था, जो बेसिस था ये सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करने का, वो फाइनेंशियल एसेट रियलाइज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये प्रोविजन ये कहता है कि अगर जो 75% सिक्योरिटी रिसीट्स के होल्डर हैं, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, वो अपनी मीटिंग बुला सकते हैं, और उस मीटिंग में जो भी रेजोल्यूशन पास करेंगे वो उस कंपनी पर बाइंडिंग होगा। मतलब एक किस्म से वो कंपनी को ही टेक ओवर कर लेंगे, ये मतलब। अच्छा, एन एआरसी कैन नॉट रेज फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स विच इज नॉट ए क्वालिफाइड बायर। ठीक है, जो क्वालिफाइड बायर नहीं है उससे पैसे नहीं ले सकती एआरसी। क्वालिफाइड बायर हमने देख लिया कौन है, बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एलआईसीज हैं, एसएफसीज हैं, एसआईडीसी हैं, एआरसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ठीक है ना, या एफआईआईज हैं जो रजिस्टर्ड है अंडर सेबी। ठीक है, ये है बेसिकली। सिक्योरिटाइजेशन का क्या मतलब है? सिक्योरिटाइजेशन मींस एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बाय एनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, जो किसने दिया है? एक किसी ओरिजिनेटर ने। ठीक है, whether by raising of funds by such asset reconstruction company from qualified buyers by issue of security receipts representing undivided interest in such financial assets or otherwise। ठीक है, तो सिक्योरिटाइजेशन का क्या मतलब है कि जो फाइनेंशियल एसेट्स उस बैंक के पास थे, उस ओरिजिनेटर के पास थे, उसको ले लेना। ठीक है, और
क्वालिफाइड बायर्स को दे देना अगेंस्ट इश्यू ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स। ये है बेसिक बात, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, इट हेल्प्स द एआरसी टू एक्वायर फाइनेंशियल एसेट्स लाइक लोन्स फ्रॉम बैंक्स, ठीक है। अब इस तरह से ये क्या कर रही है, जो एआरसी है, इट हेल्प्स, ये जो सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस है, सिक्योरिटाइजेशन क्या है, सिक्योरिटाइजेशन मतलब इशूइंग ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स टू क्वालिफाइड बायर्स। इससे इट हेल्प्स द एआरसी टू एक्वायर फाइनेंशियल एसेट्स लाइक लोन्स फ्रॉम बैंक्स ड्यू टू विच द एआरसी शैल बी डीम्ड टू बी द लेंडर, ठीक है। एंड ऑल द राइट्स ऑफ सच बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल वेस्ट इन सच कंपनी इन रिलेशन टू सच फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। तो ये एक किस्म से ये क्या करती है, इट हेल्प्स द एआरसी टू एक्वायर फाइनेंशियल एसेट्स लाइक लोन्स फ्रॉम बैंक्स, ठीक है, ड्यू टू विच द एआरसी शैल बी डीम्ड टू बी द लेंडर। तो वो जो बैंकर के राइट थे एज ए लेंडर, वो किसके पास आ गए, एआरसी के पास आ गए, ठीक है। भाई बैंकर ने लोन दिया था, बोरोवर ने पैसे दिए, बैंकर से किसने ले लिया, एआरसी ने, तो ये उसके फाइनेंशियल एसेट्स को एक्वायर कर रहा है, और जो भी लेंडर के राइट्स थे वो इसके पास आ गए, ठीक। सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है, secured creditor means any bank or financial institution or any consortium or group of banks or financial institutions holding any right, title or interest upon any tangible or intangible asset, ठीक है। secured creditor आप समझिए कि कोई बैंक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या कोई कंसोर्टियम या ग्रुप ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ वर्ड बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं यूज किया गया, वर्ड यूज किया गया सिक्योर्ड क्रेडिटर। और डिबेंचर ट्रस्टी क्या है, सिक्योर्ड क्रेडिटर में जो डिबेंचर ट्रस्टी है अपॉइंटेड बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो भी इसके अंदर आ गया। फिर कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वेदर एक्टिंग एज सच और मैनेजिंग ए ट्रस्ट सेट अप बाय सच एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर द सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन एज द केस में भी। जो एआरसी है वो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर में आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि उसने बैंक का लोन ले लिया, ठीक है, बैंक का लोन इसने टेक ओवर कर लिया ना, तो एआरसी ऑल्सो स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। फिर जो डिबेंचर ट्रस्टी है, रजिस्टर्ड विद द बोर्ड अपॉइंटेड बाय एनी कंपनी फॉर सिक्योर्ड डेट सिक्योरिटीज, ठीक है, और एनी अदर ट्रस्टी होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ ए बैंक और फाइनेंस। तो ये सारे के सारे सिक्योर्ड क्रेडिटर की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। इन whose favor security interest is created by any borrower for due repayment of any financial assistance. सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट हम जानते हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट हमारा आईबीसी में भी आता है, तो एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट ऑफ एनी काइंड, ठीक है, अदर देन दो स्पेसिफाइड इन सेक्शन 31। सेक्शन 31 में कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं, जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट मतलब सिक्योरिटी इंटरेस्ट किसको नहीं माना जाएगा। इसमें क्या क्या आ रहा है, बेसिकली सिक्योरिटी इंटरेस्ट में कोई मॉर्गेज, चार्ज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट, ठीक है, ये सारा जो भी अनपेड पोर्शन है वो आपका सिक्योरिटी इंटरेस्ट में आता है, ठीक है। ठीक है जी, बस इतना ही है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो पीएफआई है, ये एज पर सेक्शन 4A ऑफ कंपनीज एक्ट, ये भी आ गया आपका, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए जो सेक्शन 4A में डिफाइंड है कंपनीज एक्ट के, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो स्पेसिफाइड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ आरडीबी एक्ट, ठीक है, ये भी इसके अंदर आ गए। और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है ये भी इसके अंदर आ गई, ठीक है। अब सबसे पहले तो एआरसी जो इसका पहला पार्ट है, ठीक है, ये चैप्टर 2 में दिया गया। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन इसमें नेट ओन्ड फंड्स कितने चाहिए, नॉट लेस देन 100 करोड़ रुपीस, या जो भी ज्यादा अमाउंट हो। पहले इसमें 2 करोड़ था, अब इसको 100 करोड़ कर दिया गया है, और सच हायर अमाउंट जो भी नोटिफाई करेगी, ठीक है। तो इस पे सवाल आ सकता है कि नेट ओन्ड फंड्स कितने होने चाहिए एआरसी के, ठीक है। However, the term net owned funds is not defined in the act, and hence we have to refer to the definition of net owned funds as mentioned in the explanation to section 451 of the Reserve Bank of India Act, ठीक है। तो नेट ओन्ड फंड्स आपको वहां से देखने पड़ेंगे। फिर कंडीशंस क्या है, पावर ऑफ आरबीआई टू इंस्पेक्ट बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ एआरसी, क्योंकि एआरसी को कौन रेगुलेट कर रहा है, आरबीआई, तो आरबीआई के पास नेचुरली पावर है, उसके बुक्स या रिकॉर्ड्स को देख सकता है, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग अप्रूवल टू कमेंस और कैरी ऑन नी बिजनेस, ठीक है।
इसको क्या क्या देखना है, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स बुक्स में क्या क्या देखेगा, एक तो ये देखेगा कि भाई कोई लॉसेस नहीं है इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है। और जो एआरसी है, इट हैज मेड एडिक्वेट अरेंजमेंट्स फॉर रियलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। भाई एआरसी का काम क्या होगा, एआरसी का काम ये होगा जो बैंक के पास सिक्योरिटी पड़ी हुई है उनको रियलाइज करना, ठीक है। तो आरबीआई ये देखेगा कि इसके पास क्या एडिक्वेट अरेंजमेंट्स हैं फॉर रियलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स acquired for the purpose of securitization or asset recognition and shall be able to pay periodical returns and redeem or on respective due dates on the investments made in the company by the qualified buyers, ठीक है। भाई इसके एआरसी के एक तरफ खड़ा है बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दूसरी तरफ खड़ा है क्वालिफाइड बायर। क्वालिफाइड बायर से इसने सिक्योरिटी रिसीट्स इश्यू की हैं, उसको कुछ प्रॉमिस किया है कि भाई हम ड्यू डेट्स पर आपको ये पैसे देंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ बैंक खड़ा है जिसने इसको अपनी जो बैंक के पास सिक्योरिटी थी जो बोरोवर ने दी थी उसको ये रियलाइज करेगा। तो आरबीआई ये देखेगा कि ये दोनों काम ये एआरसी कर सकती है या नहीं कर सकती, ठीक है। और जो डायरेक्टर्स हैं एआरसी की, इनके पास एडिक्वेट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, रिलेटेड टू फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, दैट एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स, उसमें कोई कन्विक्शन नहीं है, ठीक है। और इसमें एक वर्ड आती है स्पॉन्सर। जो वर्ड स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर क्या है, स्पॉन्सर इज ए पर्सन होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो इस पे भी सवाल आ सकता है। तो जो स्पॉन्सर है एआरसी का, इज अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन, ठीक है। एआरसी हैज कंप्लाइड विद और इज इन पोजीशन टू कंप्लाई विद प्रूडेंशियल नॉर्म स्पेसिफाइड बाय आरबीआई एंड एआरसी हैज कंप्लाइड विद वन और मोर कंडीशंस स्पेसिफाइड इन द गाइडलाइंस इशूड बाय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो एआरसी को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर लगता है कि भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इन केस ऑफ चेंज। अब आपने एक बार एआरसी बना ली, ठीक है, आपने उसमें कोई सब्सटेंशियल चेंज करना है उसकी मैनेजमेंट में, इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ एनी डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आपने उसका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, आपने उसका नाम चेंज करना है, तो आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी आरबीआई की। एक सेकंड, ठीक है जी। तो आपने ये मेजर चेंजेस करनी है तो आपको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फिर जो आरबीआई का डिसीजन है इट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, ठीक है, चाहे चेंज इन मैनेजमेंट हो, ठीक है। अब चाहे वो चेंज इन मैनेजमेंट सब्सटेंशियल चेंज है चाहे नहीं है, ठीक है ना, तो भी आरबीआई का जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा। और एक्सप्रेशन सब्सटेंशियल चेंज का क्या मतलब है, सब्सटेंशियल चेंज का मतलब है चेंज इन द मैनेजमेंट बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और चेंज अफेक्टिंग द स्पॉन्सरशिप इन द कंपनी, ठीक है। स्पॉन्सर का डेफिनेशन हमने आपको बता ही दिया कि स्पॉन्सर कौन है, जिसके पास 10% से ज्यादा कैपिटल है, ठीक है। तो कोई भी डिसीजन जो आरबीआई का होगा वो बाइंडिंग होगा। फिर सेक्शन 4 कहता है कि इसका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है अगर वो उसने बिजनेस करना बंद कर दिया, ठीक है, या इट सीजेस टू रिसीव और होल्ड एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ए क्वालिफाइड बायर, ठीक है, या इट हैज फेल्ड टू कंप्लाई। तो ये सारी चीजें इस केस में इसका सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। या कोई आरबीआई की डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं करती या आरबीआई के हिसाब से अकाउंट्स वगैरह नहीं बनाती, ठीक है, या उनको इंस्पेक्शन नहीं कराती अगर आरबीआई डिमांड करे तो, ठीक है। ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सबसेक्शन 3, ठीक है। तो 3 सबसेक्शन 6 में कुछ प्रायर अप्रूवल चाहिए जो चेंज करने के लिए, अगर वो नहीं करती तो उसका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है, ठीक है। और अगर जब भी करेगा तो नेचुरली उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, ये तो है ही, ठीक है। अपील भी हो सकता है। अपील कितने कहाँ करनी है, विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज करनी है, ठीक है। और कहां पर करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ क्या मतलब है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ मतलब है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इट मस्ट आल्सो गिव सच कंपनी ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर रिजेक्टिंग द अपील। ये एआरसी के बारे में हो गया, ठीक है। It must be noted that an ERC which is holding investments of qualified buyers and whose application for grant of certificate of registration has been rejected
or certificate has been cancelled, notwithstanding such a rejection or cancellation, be deemed to be an ARC until it pays the entire investment held by it. ठीक है, तो इसमें ये है कि चाहे ARC का सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया तो जो भी उसके पास इन्वेस्टमेंट्स है उसको वो रीपेमेंट करेगी. ठीक है. सेक्शन 5 कहता है एक्विजिशन ऑफ राइट्स और इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट्स. ठीक है. ARC का काम क्या है? ARC का काम ये है कि बैंकर के पास जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास एसेट्स हैं, उसको एक्वायर करना. ठीक है. तो notwithstanding anything contained in an agreement or any other law for the timing in force, any ARC may acquire financial assets of any बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. अब बैंक से ये कंपनी जो है फाइनेंशियल एसेट्स को एक्वायर कर रही है, मतलब बैंक का जो बैंक की बुक्स में जो लोन खड़ा हुआ है उसको एक्वायर कर रही है. ठीक है. अब उसको जब एक्वायर करेगी तो उसके बाद में उसके बदले में भी तो कुछ देगी ना ARC. वो क्या देगी? डिबेंचर दे सकती है, कोई बॉन्ड दे सकती है, कोई अदर सिक्योरिटी दे सकती है, क्योंकि पैसे तो है नहीं अब इसके पास. ठीक है. इन द ये पैसे तो लेगी, कहां से लेगी? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से. ठीक है. तो ये ARC क्या करेगी? इट विल इशू ए बॉन्ड, डिबेंचर और एनी अदर सिक्योरिटी इन द नेचर ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन एग्रीड अपॉन बिटवीन सच कंपनी एंड द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ठीक है. उनकी जो भी एग्रीड टर्म्स होंगी, मान लो 100 रुपए का लोन है, 100 रुपए की जो फाइनेंशियल एसेट है, उसको कह देगी भाई ऐसा है 80 रुपए में खरीद लूंगी, ये तो मरा हुआ एसेट है तुम्हारा. ठीक है ना. तो नेचुरली वो अपनी कुछ कमीशन वगैरह रख के उसको एक्वायर कर लेती है बैंक से. बैंक की बैलेंस शीट क्लीन हो गई, बैंक ने पहले ही है उसको NPA डिक्लेयर किया हुआ. ठीक है. बाय एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद सच बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन for the transfer of such financial assets to such company on such terms and conditions as may be agreed upon between them. ठीक है. तो जो भी उनकी कंडीशंस होंगे. ठीक है. एनी डॉक्यूमेंट, ये जो भी मेन पॉइंट्स है मैंने ना उनको हाईलाइट कर दिया हुआ है, तो जो हाईलाइटेड पोर्शन है जैसे रेड में, उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है. तो एनी डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूटेड बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अब इन दोनों के बीच में जो भी डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूट हो रहा है, क्या डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूट हो रहा है? बैंक उसको दे रहा है ARC को अपना फाइनेंशियल एसेट. ठीक है. और उसके बदले में ARC कह रहा है भाई मैं आपको डिबेंचर या बॉन्ड या सिक्योरिटी इशू करूंगा. ठीक है. तो ये भी जो भी डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूट होगा वो स्टैंप ड्यूटी से एग्जेम्प्ट होगा. ठीक है. प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई where the acquisition of the financial asset by the ARC is for the purpose other than asset reconstruction or securitization. ठीक है. लेकिन अगर कुछ पर्पस है इट विच इज अदर देन एसेट रिकंस्ट्रक्शन या सिक्योरिटाइजेशन, तो ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे. सच एग्जम्पशन इज प्रोवाइडेड in order to encourage banks or financial institutions to resolve NPAs issued by offloading it to ARCs. ठीक है. भाई गवर्नमेंट का ही पैसा है, गवर्नमेंट के पास ही जाना, तो उन्होंने कहा ठीक है स्टैंप ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर दो इसको. ये सेक्शन 8F में कहा गया है. फिर डिबेंचर इन कॉमन पार्लांस इज एन एक्नॉलेजमेंट of a debt. So bond also refers to same nature of instrument as a debenture. Both of them acknowledge a debt and it's an obligation to pay. तो अब इसमें क्या है? It is stepping into the shoes of the bank. तो both rights and liabilities including suits and appeals, जो भी बैंक के पास था वो अब ARC के पास आ गया. ठीक है. जो उसके सारे राइट आ गए बैंक के, सारी उसकी लाइबिलिटीज आ गई, इंक्लूडिंग सूट्स एंड अपील्स. तो बैंक को जो भी बीमारी थी वो सारी बीमारी अब ARC ने ले ली. ठीक है. इन केस वेयर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज ए लेंडर इन रिलेशन टू एनी फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर्ड बाय द ARC. ठीक है. देन सच ARC shall on such acquisition be deemed to be the lender and all the rights of such bank or financial. ठीक है. ये वही है. If the bank or financial institution is holding any right title upon any tangible or intangible asset to secure, ठीक है, ये सारा उसके पास ARC के पास आ जाएगा. ठीक है. ये सारी राम कहानी वही है. जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डीड्स हैं, बॉन्ड्स है, एग्रीमेंट है, पावर ऑफ अटॉर्नी है. ठीक है ना. ये सारे जो भी वहां पर सब्सिस्ट करते थे ये किसके पास चले जाएंगे? चले जाएंगे ARC के पास. जैसे कि ARC के नाम ही वो इशू किए गए थे. इतनी लंबी कहानी में यही लिखा हुआ है. इफ ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एनी सूट अपील और अदर, जो भी सूट अपील है वो भी उसके पास चला जाएगा. ठीक है. ARC के पास. ऑन एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स द ARC मे विद द कंसेंट ऑफ द ओरिजिनेटर. ठीक है. फाइल ओरिजिनेटर कौन है? ओरिजिनेटर है जो
बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है, किसको, बोरोवर को या ऑब्लाइजर को, ठीक है। ऑन एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स द एआरसी may with the consent of the originator file an application before the DRT or appellate tribunal or any court or authority for the purpose of substitution of its name in any pending suit, appeal or other proceeding, ठीक है। तो जैसे ही फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर किए एआरसी ने, ये क्या करेगी, एक एप्लीकेशन दे देगी डीआरटी को या एपेलेट ट्रिब्यूनल को या जहां पर भी कोर्ट या अथॉरिटी जिसके पास भी कोई पेंडिंग सूट है, वहां पर वो क्या करेगा, वो उसका नाम रिप्लेस कर देगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ द एआरसी, मतलब जहां जहां पर बैंक का नाम लिखा हुआ है वहां पर एआरसी का नाम आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशंस टू एनी वन ऑफ द डीआरटी इन सर्टेन केसेस, मान लीजिए एक से ज्यादा डीआरटी में एप्लीकेशंस पेंडिंग है तो क्लबिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई फाइनेंशियल एसेट ऑफ ए बोरोवर एक्वायर्ड बाय एआरसी कंप्राइज ऑफ सिक्योर्ड डेट्स और मोर देन वन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, वो जो एआरसी है इट विल फाइल एन एप्लीकेशन टू एपेलेट ट्रिब्यूनल हैविंग जुरिसडिक्शन, ठीक है, वो क्लबिंग के लिए अप्लाई कर देगी। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई खास बात नहीं। फिर नोटिस टू ऑब्लाइजर एंड डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑफ सच ऑब्लाइजर। ऑब्लाइजर कौन होता है, बोरोवर। ओरिजिनेटर कौन होता है, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इट मे गिव ए नोटिस ऑफ एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट बाय एनी एआरसी टू द कंसर्न्ड ऑब्लाइजर। तो बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये बोरोवर को नोटिस दे देगा, क्या बता देगा कि भैया ऐसे है, अब से जो है ये एक्वायर कर लिया किसने, एआरसी ने, ठीक है। एंड एनी अदर कंसर्न पर्सन एंड टू द कंसर्न्ड रजिस्टरिंग अथॉरिटी, जो भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, जो सेंट्रल रजिस्ट्री है, उसको भी इंफॉर्मेशन दे देगी। एंड ऑब्लाइजर शैल मेक पेमेंट टू द कंसर्न्ड एआरसी इन डिस्चार्ज ऑफ एनी ऑफ द ऑब्लिगेशंस इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल एसेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस, ठीक है। अब अगर तो ऑब्लाइजर को कोई पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट किसको करेगा, एआरसी को करेगा इंस्टेड ऑफ बैंक, ठीक है, सिंपल। इश्यू ऑफ सिक्योरिटी बाय रेजिंग ऑफ रिसीट्स और फंड्स बाय एआरसी। देखिए इन मीटिंग्स का पर्पस ये है, इन मीटिंग्स का, कि आराम से हम लोग डिस्कस कर सकें। क्या होता है, भागा दौड़ी में ना चीजें डिस्कस नहीं होती। अगर हम सोचें भाई हमें चार एक्ट एक ही दिन में डिस्कस करने हैं या कोई जल्दी, इसीलिए हम लोग आराम से चीजों को डिस्कस करते हैं ताकि समझ में आ जाए। मेन पर्पस ये है, अगर समझ में ही नहीं आए तो आपका भी टाइम खराब, मेरा भी। इश्यू ऑफ सिक्योरिटी बाय रेजिंग ऑफ रिसीट्स और फंड्स बाय एआरसी। सेक्शन 7 क्या कहता है, सेक्शन 7 ये कहता है एआरसी ने क्या किया, एआरसी ने एक्वायर कर लिए फाइनेंशियल एसेट्स अंडर सेक्शन 5, ये क्या करेगी, इट विल ऑफर सिक्योरिटी रिसीट्स, किसको, क्वालिफाइड बायर्स को, ठीक है। इसको भी तो पैसा चाहिए ना, एआरसी के पास पैसा तो है नहीं भाई। एआरसी ने बैंक से एसेट्स तो ले लिया, फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। ऑब्लाइजर को भी बता दिया कि भाई तुम एआरसी को पेमेंट कर देना, लेकिन उसने पेमेंट ही करनी होती तो पहले ही कर देता, उसने पेमेंट तो करनी नहीं। तो एआरसी क्या करेगी, एआरसी अब क्वालिफाइड बायर्स को ढूंढेगी, ठीक है। वो एलआईसी हो सकता है, वो कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो सकती है, वो कोई एफआईआई हो सकता है विच इज अप्रूव्ड बाय सेबी, उनको सिक्योरिटी रिसीट्स इशू कर देगी, ठीक है। और such other category of investors including non-institutional investors as may be specified by RBI, ठीक है, for subscription. And ARC may raise funds from the qualified buyers by formulating schemes for acquiring financial assets and shall keep and maintain separate and distinct accounts in respect of each such scheme, ठीक है। ये क्या करेगी, ये कुछ स्कीम बना सकती है ARC, ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइड बायर से पैसा लेना है तो क्वालिफाइड बायर्स को ये स्कीम बताएगी कि भाई हम ये वाले एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। एंड शैल कीप एंड मेंटेन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच स्कीम। तो जितनी भी स्कीम्स होगी उसके लिए वो सेपरेट या डिस्टिंक्ट अकाउंट्स रखेगी, ठीक है। आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय ए क्वालिफाइड बायर एंड इंश्योर दैट रियलाइजेशंस ऑफ सच फाइनेंशियल एसेट्स इज हेल्ड एंड अप्लाइड टुवर्ड्स रिडेम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ रिटर्न्स एश्योर्ड ऑन सच इन्वेस्टमेंट्स अंडर द रेलेवेंट स्कीम, ठीक है। भाई ये जो इसको तो उन्होंने कुछ एश्योरेंस दिया है ना, जो क्वालिफाइड बायर है, कि भाई हम आपको कुछ रिटर्न देंगे, उसने पैसे दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज उसके लिए वो स्कीम बनाएगी और हर स्कीम का सेपरेट अकाउंट रखेगी। फिर एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स। एनी सिक्योरिटी रिसीट
issued by ARC and not creating, declaring, assigning, limiting or extinguishing any right. ठीक है. It shall not require compulsory registration. तो इसकी रजिस्ट्रेशन करनी जरूरी नहीं है. ठीक है. अंडर सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट. ये हमें मालूम है, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. तो उसके सेक्शन 17 में कुछ रिक्वायरमेंट होती है रजिस्ट्रेशन की, कि इन केस ऑफ क्रिएशन ऑफ एनी इंटरेस्ट. तो यहाँ पर ये जो है, इसमें कोई कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. फिर सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 कहता है मेजर्स फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन. अब एआरसी क्या कर सकती है? एआरसी कुछ भी कर सकती है, जो भी एसेट उसने एक्वायर किया है. पहला, उस बिजनेस को जो है मैनेज कर ले. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर बाय चेंज इन और टेक ओवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर. उसको सेल कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं ऑफ ए पार्ट और होल ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर. रीशेड्यूलिंग ऑफ पेमेंट्स ऑफ डेट्स, उसको टाइम दे सकते हैं बोरोवर को. बोरोवर कहता है जी अभी तो पैसे है नहीं मेरे पास, मेरा जो है ना रिस्ट्रक्चर कर दो. ठीक है, रीपेमेंट शेड्यूल, तो वो भी कर सकती है. एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. ठीक है, जो भी उसने सिक्योरिटी दे रखी थी बोरोवर ने, उसको एनफोर्स कर सकती है, उसको एक्वायर कर सकती है. सेटलमेंट ऑफ ड्यूज पेएबल बाय द बोरोवर, तो जो भी बोरोवर के ड्यूज थे उसको सेटल कर सकती है. टेकिंग पोजीशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स इन अकॉर्डेंस. ठीक है, और कन्वर्जन ऑफ एनी पोर्शन ऑफ डेट इनटू शेयर्स ऑफ ए बोरोवर कंपनी. तो ये सारे जो मेजर्स ले सकती है एआरसी फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन. ठीक है, प्रोवाइडेड ये है कि दैट कन्वर्जन ऑफ एनी पार्ट ऑफ डेट इनटू शेयर्स शैल बी डीम्ड ऑलवेज टू हैव बीन वैलिड एज इफ द प्रोविजंस ऑफ दिस क्लॉज वर इन फोर्स एट ऑल मटेरियल टाइम्स. ठीक है. Reserve Bank shall for the purpose determine the policy and issue necessary directions, including the direction for regulation of management of the business of the borrower and fees to be charged. ठीक है, तो आरबीआई इस चीज को गवर्न करती है एआरसी के जो भी प्रोविजंस है, कि भाई एआरसी की फीस कितनी होगी, क्या होगा, कैसे वो रेगुलेट करेगी, कैसे वो मैनेज करेगी. ठीक है, और जो एआरसी है वो आरबीआई की डायरेक्शंस पर ही काम करेगी. ठीक है. कुछ दूसरे फंक्शन भी हैं एआरसी के, वो क्या क्या है? तो एनी एआरसी में इट में एक्ट एज एनी एजेंट फॉर एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. वो उनके एजेंट बन के भी काम कर सकती है बैंक के. ठीक है, जो भी उनकी म्यूचुअली एग्रीड फीस होगी. इट कैन एक्ट एज मैनेजर रेफर टू इन सेक्शन 13(4)(c) ऑन सच फीस एज मे बी म्यूचुअली एग्रीड. इट में एक्ट एज रिसीवर. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नो एआरसी शैल एक्ट एज मैनेजर इफ एक्टिंग एज सच गिव्स राइज टू एनी पेक्यूनियरी लायबिलिटी. ठीक है, तो उसमें क्या, ये एआरसी का काम एक किस्म से कंसल्टिंग का काम है. तो अगर उसकी कोई लायबिलिटी आती है तो फिर वो एज मैनेजर एक्ट नहीं कर सकती. ठीक है. नो एआरसी व्हिच हैज बीन ग्रांटेड ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल कमेंस और कैरी ऑन विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई और एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ सिक्योरिटाइज. तो इसका मेन काम सिर्फ यही रहेगा, सिक्योरिटाइजेशन या एसेट रिकंस्ट्रक्शन. उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकती एआरसी. ठीक है, तो अगर कोई और काम कर रही है तो उसको, पहले काम कर रही है तो उसको बंद कर देगी फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. ठीक है. उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट. सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 कहता है, ये रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट की बात करता है बिटवीन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एआरसी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स थ्रू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन. मतलब इनके बीच में आपस में झगड़ा हो गया. ठीक है, बैंक और एआरसी के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया. बैंक और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल के बारे में, एआरसी और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के बारे में, अगर इनका कोई डिस्प्यूट हो गया तो ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन के थ्रू ही रिजॉल्व होगा. ठीक है, ये नहीं कि ये भी बैंक पहुंच जाए. इट सच डिस्प्यूट शैल बी सेटल्ड बाय कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन एज प्रोवाइडेड इन द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट एज इफ द पार्टीज टू द डिस्प्यूट हैव कंसेंटेड इन राइटिंग फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सच डिस्प्यूट बाय कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन. ठीक है, सिंपल है. अब आगे, powers of Reserve Bank to determine policy and issue directions. आरबीआई की पूरी पावर है. तो आरबीआई क्या है? मदर इन लॉ है. किसकी? एआरसी की. इन द पब्लिक इंटरेस्ट रिजर्व बैंक में डिटरमिन द पॉलिसी एंड गिव डायरेक्शंस टू एनी एआरसी इन मैटर्स. ठीक है, वो इनकम रिकॉग्निशन कैसे करेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैसे होगा, कैपिटल एडिक्वेसी क्या होगी. ठीक है, ये सारे काम कौन बताएगा एआरसी को? आरबीआई. Without prejudice to the generality, the Reserve Bank may give direction to any ERC in particular. Particularly किस बारे में दे सकती है? एक तो ये कह सकता है कि भाई टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट ऑफ ए बैंक. ठीक है, जिसको एक्वायर करना है, किस टाइप के फाइनेंशियल एसेट को एक्वायर करेगी एआरसी.
ठीक है, और उसका एक्विजिशन कैसे होगा, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, और एग्रीगेट कितना एक्वायर कर सकती है, ठीक है, और फीस कितनी चार्ज करेगी, और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स इशूड टू क्वालिफाइड बायर, ये सारे बारे में कौन बताएगा एआरसी को, आरबीआई। सेक्शन 12 क्या कहता है, सेक्शन 12 कहता है पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू कॉल फॉर स्टेटमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। द रिजर्व बैंक में डायरेक्ट एआरसी टू फर्निश इट विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक विद सच स्टेटमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो कोई जो भी स्टेटमेंट चाहे मांग सकती है। सेक्शन 12 क्या कहता है, रिजर्व बैंक जो है कोई ऑडिट या इंस्पेक्शन भी कर सकती है, सिंपल है, ठीक है, उसके चेयरमैन को हटा सकती है, डायरेक्टर को हटा सकती है, नए डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, अपना कोई अफसर ऑफिसर कोई ऑब्जर्वर लगा सकती है एआरसी में, ठीक है, ये है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, ये बात है। अगला पॉइंट क्या आ गया, ये चैप्टर 3, हमने अभी तक चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, अब आ गया चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्या आ गया, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। इस एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बोरोवर ने बैंक से लोन लिया था, बोरोवर ने कुछ सिक्योरिटी दी थी, अब बोरोवर पैसे नहीं दे रहा, तो उस सिक्योरिटी को कैसे एनफोर्स करना है, ये कहानी इसमें बताई गई है। सेक्शन 13 to 19। सेक्शन 13 क्या कहता है, सेक्शन 13 कहता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 69 और 69A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, तो वहां पर क्या है, वहां कोर्ट की पावर है, कोर्ट की जुरिसडिक्शन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। ये कहता है कि सेक्शन 69 या 69A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो भी लिखा हो, तो ये जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है इट में बी एनफोर्स विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ठीक है, यहाँ पर कोई कोर्ट नहीं है, कोई ट्रिब्यूनल नहीं है, डायरेक्टली एनफोर्स कर सकता है बैंक, ठीक है, वेयर बोरोवर मेक्स अ डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ डेट, तो वेयर इन बोरोवर, ठीक है, जिसकी लायबिलिटी है टू सिक्योर्ड क्रेडिटर अंडर ही मेक्स एनी डिफॉल्ट, ठीक है ना, और उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया सिक्योर्ड क्रेडिटर ने, ठीक है ना, तो उसको नोटिस देगा इन राइटिंग कि भैया 60 दिन के अंदर मेरी पेमेंट करो, ठीक है, और डेट सिक्योरिटीज के केस में ये चीज अप्लाई नहीं होगी, मान लो डिबेंचर्स बॉन्ड्स वगैरह इशू किए गए, ठीक है, तो वहां पर क्या 90 डेज का आपको नोटिस देना। अब ये जो नोटिस किस तरह से देना ये भी दिया हुआ है सारा, उसके बाद में ये रूल्स में दिया हुआ है कि नोटिस किस तरह से जाएगा। फिर ऑब्जेक्शन क्या होगा, ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन टू दी बोरोवर। अब बोरोवर जो है वो क्या करेगा, बोरोवर का अगर कोई ऑब्जेक्शन है इस नोटिस पे, नोटिस किससे मिला उसको, सिक्योर्ड क्रेडिटर से, मतलब जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अगर बोरोवर ने कोई रिप्रेजेंटेशन देना है या कोई ऑब्जेक्शन देना है, तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो उस रिप्रेजेंटेशन या ऑब्जेक्शन को कंसिडर करेगा, और मान लो वो कहता भाई एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे या टेनेबल नहीं है, तो वो 15 दिन के अंदर बता देगा ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि भाई मैं क्यों आपका ये रिप्रेजेंटेशन नहीं एक्सेप्ट कर रहा। बोरोवर के पास कोई राइट ऑफ अपील नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो प्रॉपर्टी तो उसकी एक्वायर होगी ही होगी, क्योंकि अगर वो फिर कोर्ट में चला गया तो फिर पर्पस ही क्या रहा। ये सरफेसी एक्ट इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट माना जाता है, प्रोवाइडेड द रीजन सो कम्युनिकेटेड और द लाइकली एक्शन shall not confer any right on the borrower। वो डीआरटी में एप्लीकेशन नहीं दे सकता, डीआरटी में एप्लीकेशन दे सकता है एक बार प्रॉपर्टी उसके एक्वायर हो जाए तब, ठीक है। अगला कहता है borrower fails to discharge his liability। if the borrower fails to discharge his liability in full within the above specified period, the secured creditor may take recourse to one or more of the following measures। ठीक है, उसने 60 दिन का नोटिस दिया, एनपी डिक्लेयर किया, borrower ने कुछ नहीं किया, तो ये क्या करेगा, ये उसके he can take possession of the securities या उसके बिजनेस को टेक ओवर कर सकता है, provided that the right to transfer by way of lease, assignment or sale shall be exercised only where the substantial part of the business of the borrower is held as security for the debt। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए उसके 4 बिजनेस हैं, ठीक है, और अब हो सकता है आपके अलावा उसने दूसरों से भी लोन लिया हो, तो ये नहीं कि भाई आपका जो थोड़ा सा पोर्शन है उसके लिए आप पूरा ही उसके बिजनेस को एक्वायर कर लोगे, ठीक है, सब्सटेंशियल पोर्शन आपके पास कवर होना चाहिए, ठीक है, सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर इज हेल्ड एज सिक्योरिटी फॉर द डेट। तो ये जो राइट है ट्रांसफर का बाय वे ऑफ लीज, असाइनमेंट और सेल, ये तभी एक्सरसाइज होगा, ठीक है। सब्सटेंशियल मतलब सब्सटेंशियल इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, लेकिन मान लो 50% से ज्यादा है तो आप सब्सटेंशियल मान सकते हैं।
प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द मैनेजमेंट ऑफ होल ऑफ द बिजनेस और पार्ट ऑफ द बिजनेस इज सीवरेबल, ठीक है, अगर उसको सीवरेबल है, मान लो अलग अलग प्लांट है, अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग यूनिट से उसने अलग अलग फैसिलिटीज ले रखी हैं, तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, इट शैल टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ सच बिजनेस ऑफ द बोरोवर व्हिच इज रिलेटेबल टू द सिक्योरिटी फर्दर। तो जिस सिक्योरिटी के साथ वो वाला जो अगर सीवरेबल है, पहले देखिएगा सीवरेबल है या अनसीवरेबल है, सब्सटैंशियल है या नहीं सब्सटैंशियल है, उस हिसाब से वो टेक ओवर करेगा, ठीक है। अपॉइंट एनी पर्सन हियर ऑफ रेफर्ड टू एज मैनेजर, तो वो किसी पर्सन को मैनेजर अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। Require at any time by notice in writing any person who has acquired any of the secured assets from the borrower and from whom any money is due or may become due to the borrower to pay the secured creditor so much of the money as is sufficient to pay the debt, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अगर मान लो इसने किसी बंदे को मैनेजर अपॉइंट किया, ठीक है, जिसने उस एसेट्स को एक्वायर किया, ठीक है ना, और तो उससे कहेगा भाई तुम मुझे पैसे दे दो, तुमने मेरा एसेट एक्वायर कर लिया ना, मान लो एआरसी ने एसेट एक्वायर कर लिया, तो एआरसी से ये पैसे मांग लेगा बैंक अपना सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी। अब ये जो सिक्योरिटाइजेशन है ये कैसे होगा, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट कैसे होगा। एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी सेट भाई या तो पोजीशन ले लेगा या मैनेजमेंट को ले लेगा, ठीक है, जो भी रिलेटेबल है। हमने इसमें दोनों चीजें देखी कि एक तो सब्सटैंशियल पोर्शन होना चाहिए और दूसरा अगर सीवरेबल है तो जिस सिक्योरिटी के साथ वो रिलेट करता उस पार्ट को टेक ओवर कर सकते हो, ठीक है। एक बिजनेस के 4 यूनिट्स हैं, चारों यूनिट्स अलग अलग बैंक से फाइनेंस्ड है, तो जो यूनिट आपके बैंक ने फाइनेंस किया है उसी को आप टेक ओवर कर सकते हो, सारे को नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात। अपॉइंट किसी पर्सन को आप मैनेजर अपॉइंट कर सकते हो एंड यू कैन डिमांड नोटिस टू द पर्सन हु हैज एक्वायर्ड द सिक्योर्ड एसेट्स फ्रॉम द बोरोवर, ठीक है। तो आप उससे पैसे लेने के अधिकारी हो जिसने जिसने आपके बिहाफ पर उस सिक्योर्ड एसेट को एक्वायर किया है, सिंपल है, ठीक है। फिर डिस्चार्ज फ्रॉम पेमेंट, एनी पेमेंट मेड बाय एनी पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 54D to the secured creditor shall give such person a valid discharge as if he had made payment to the borrower, ठीक है। तो अब any payment made by any person referred to in section 54D to the secured creditor shall give such person a valid discharge as if he has made payment to the borrower, ठीक है। तो अब ये जो एआरसी है, एआरसी ने जो पेमेंट इसको कर दी बैंक को, ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर को जो भी पेमेंट कर दी वो इसका मतलब बोरोवर के बिहाफ पे की उसने पेमेंट, ठीक। फिर उसके बाद आता है राइट विद रिस्पेक्ट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी where the sale of an immovable property for which a reserve price has been specified has been postponed for want of a bid amount of not less, तो इस केस में क्या होगा, तो it shall be lawful for any officer of the secured creditor if so authorized by the secured creditor in this behalf to bid for the immovable property on behalf of the secured creditor at any subsequent sale, ठीक है। कोई भी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसमें कोई रिजर्व प्राइस फिक्स किया गया है, अगर आपको रिजर्व प्राइस नहीं मिला, ठीक है, तो सेकंड या सब्सिक्वेंट सेल में जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो बिड कर सकता है उस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। और अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन, बेसिकली बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वेयर द सिक्योर्ड क्रेडिटर रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 5A इज डिक्लेयर्ड टू बी द परचेजर, ठीक है, the amount of the purchase price shall be adjusted towards the amount of the claim of the secured creditor for which the auction of the enforcement of security। भाई देखो ऐसे है, इसने पैसे लेने थे, ठीक है, अब इस बैंक ने पैसे लेने थे, अब इस बैंक ने ही उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया, ठीक है। सबसे पहले तो दूसरे को अथॉरिटी दी जाए, दूसरे को राइट है एक्वायर करने का, अगर उसने एक्वायर नहीं किया तो बैंक भी एक्वायर कर सकता है। मान लीजिए बैंक ने 5 करोड़ का लोन दे रखा था, ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी एक्वायर हुई 3 करोड़ में, तो इसका मतलब ये कि वो 3 करोड़ अब उसको अलग से नहीं देने बैंकर को, ठीक है ना, जिसने बिड अमाउंट में, वो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे 5 करोड़ में, ये कहने का मतलब है इसका सेक्शन का मतलब, ठीक है। इट शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द अमाउंट ऑफ द क्लेम ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर विच द ऑक्शन इज टेकन, ठीक है, तो उसका 2 का क्लेम बाकी रह जाएगा, ये है।
आगे चलते हैं भाई। ये वीवो 1951 इस तरह से आप एंटर करेंगे, मुश्किल होएगी ना। चलो देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 shall as far as may be apply to the immovable property acquired by secured creditor under subsection 5A। ठीक है, फिर उसके बाद आता है राइट्स रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो एनी ट्रांसफर ऑफ सिक्योर्ड एसेट after taking possession thereof or takeover of management under subsection 4 by the secured creditor or by the manager on behalf of the secured creditor shall vest in the transferring all rights in relation to the secured assets transferred as if the transfer had been done by the owner of such secured asset। ठीक है, आप सिक्योर्ड क्रेडिटर को समझने के पर्पज से समझिए कि बैंक है। ठीक है, बैंक से जल्दी समझ में आता है, बेसिकली वही है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जिसने भी उस एसेट को एक्वायर किया है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर में आता है। ठीक है, तो अब एनी ट्रांसफर ऑफ सिक्योर्ड एसेट आफ्टर टेकिंग पोजेशन देयरऑफ और टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर और बाय द मैनेजर ऑन बिहाफ ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल वेस्ट इन द ट्रांसफरिंग ऑल राइट्स इन रिलेशन टू सिक्योर्ड एसेट ट्रांसफर्ड एज इफ द ट्रांसफर हैड बीन मेड बाय द ओनर। ठीक है भाई, इसका ओनर रामलाल था, इस एसेट का रामलाल जिसने लोन लिया था उसने पेमेंट नहीं किया। अब ये रामलाल की प्रॉपर्टी सिक्योर्ड क्रेडिटर ने एक्वायर कर ली, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर जब उसको ट्रांसफर करेगा तो ऐसा ही माना जाएगा जैसे कि रामलाल ने ही वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। सिंपल सी बात है, इतना ही कहानी है। रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस फ्रॉम द बॉरोवर वेयर एनी एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट ए बॉरोवर। ठीक है, तो जो भी कॉस्ट होगी, जो चार्जेस होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, विच इन द ओपिनियन ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर हैव बीन प्रॉपर्ली इनकर्ड बाय हिम or any expenses incidental thereto shall be recoverable from the borrower। ठीक है, तो जो भी एक्सपेंसेस इनकर होंगे, जो कॉस्ट चार्जेस एक्सपेंसेस, वो सारे किससे रिकवर होंगे? बोरोवर से रिकवर होंगे। उसी का तो सब किया धरा है ना, उसी की वजह से तो हो रहा है। एंड द मनी विच इज रिसीव्ड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर shall in the absence of any contract to the country be held by him in trust to be applied। पहले इन चार्जेस की पेमेंट होगी, जो पैसा रियलाइज होगा। मान लो उसकी कोई प्रॉपर्टी थी, उसको बेच करके वो पैसा रियलाइज हुआ, तो उसके इसमें मान लो कोई ऑक्शन में एक्सपेंसेस लगे, कोई एडवर्टाइजमेंट है, उसमें सबसे पहले तो वो कॉस्ट चार्ज और एक्सपेंसेस रिकवर करेंगे। दूसरा क्या होगा? इन डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूज ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड द रेजिड्यू ऑफ द मनी सो रिसीव्ड शैल बी पेड टू द पर्सन एंटाइटल्ड देयर टू इन अकॉर्डेंस विद हिज राइट्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है, बाद में उसको पेमेंट कर देंगे। भाई उसने 10 करोड़ का लोन ले रखा था, उसकी प्रॉपर्टी बिक गई 12 करोड़ की। ठीक है, तो 12 करोड़ में क्या है? 12 करोड़ में मान लो 50 लाख तो आपके एक्सपेंसेस थे, वो पहले निकाल दोगे, आपके 1150 बचे। 1150 में बैंक अपने 10 ले लेगा, बाकी 1.5 का 1.5 जो है वो बोरोवर को वापस कर दे। ये कहानी है। ये कहता है पेमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर। ऑक्शन रुक भी सकती है। Where the amount of dues of the secured creditor together with all costs, charges and expenses incurred is tendered to the secured creditor। ठीक है, इसको पता है ऑक्शन होने वाली है, किसको? बोरोवर को। तो वो कहता है भाई ऐसा है, जितने पैसे तुम्हारे लगे ना, सारे कॉस्ट चार्जेस एक्सपेंसेस में सब दे देता हूँ। ठीक है, where the amount of dues of the secured creditor together with all cost charges and expenses incurred by him is tendered to the secured creditor at any time before the date of publication of notice for public auction। ठीक है, कब दे रहा है? बिफोर द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ नोटिस फॉर पब्लिक ऑक्शन और इनवाइटिंग कोटेशंस और टेंडर फ्रॉम द पब्लिक और प्राइवेट ट्रेडिंग फॉर ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज। ठीक है, उसने सारी पेमेंट कर दी, तो उस केस में ये सिक्योर्ड एसेट शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, इन केस एनी स्टेप हैज बीन टेकन बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर द ट्रांसफर, ठीक है, नो फर्दर स्टेप शैल बी टेकन। भाई पर्पस तो ऑक्शन कराना थोड़ी था, पर्पस तो उससे पैसे रिकवर करना था। अगर वो सारी कॉस्ट, सारे एक्सपेंसेस, सारे पैसे दे रहा है तो ऑक्शन रोक दो। अगर आपने कुछ एक्शन ले भी लिए तो वहीं पर रोक दो, फर्दर स्टेप मत लो। ये बात है। जॉइंट फाइनेंसिंग। जॉइंट फाइनेंसिंग क्या है? 60% और मोर शुड एग्री फॉर एक्शन इन केस ऑफ लिक्विडेशन डिस्ट्रीब्यूशन एज पर सेक्शन 326 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या आता है? मान लीजिए जॉइंट फाइनेंसिंग है, 4 बैंकों ने फाइनेंस कर रखा। ठीक है, तो 60% एग्री करने चाहिए जो भी एक्शन लेना है उसके लिए। Subject to the provisions of the IBC, in case of financing of a financial asset by more than one secured creditor or joint financing of a financial asset by secured creditor, no secured creditor shall be entitled to exercise, ठीक है, unless it is agreed upon by secured representing not less than 60% in value of the amount outstanding as on the record date। ठीक है,
टोटल फाइनेंसिंग है 100 करोड़ रुपए की। 100 करोड़ में 4 बैंक इन्वॉल्व है, ठीक है। एक बैंक ने दे रखा 20, एक ने दे रखा 30, एक ने दे रखा 10, एक ने दे रखा 40, ठीक है। तो अब 60% एग्री कर जाते हैं, 3 बैंक एग्री कर जाते हैं या 2 ही एग्री कर जाते हैं जिन्होंने 40 और 20 दे रखा, तो ये एक्शन वैलिड मान लिया जाएगा। मतलब मोर देन 50%, 60% शुड एग्री, ये है अगर इन केस ऑफ ज्वाइंट फाइनेंसिंग। इतनी सी बात है। बट इन केस ऑफ ए कंपनी लिक्विडेशन, लेकिन अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में है तो जो अमाउंट रियलाइज होगा फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी एसेट्स इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 326। तो 326 में जो डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म दिया गया है उस हिसाब से ही ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब अगर हम वाटरफॉल मैकेनिज्म देखें आईबीसी का, और जो कंपनी जब 326 में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत जगह ना वाटरफॉल मैकेनिज्म या डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा फर्क है, तो उन्हें हमें उनको भी इकट्ठा पढ़ना चाहिए। जैसे सेक्शन 326 पढ़े आप, तो इसके साथ में सेक्शन 53 भी पढ़े आईबीसी का, देखिए कहां कहां फर्क है। नो ट्रांसफर ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स बाय बोरोवर, ठीक है। कंसेंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर नेसेसरी फॉर ट्रांसफर इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस, ठीक है। तो नो बोरोवर शेल आफ्टर रिसिप्ट ऑफ नोटिस ट्रांसफर बाय वे ऑफ सेल लीज। अब ये बोरोवर को नोटिस मिल गया। बोरोवर को नोटिस कब मिला? जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसने क्या किया, एनपीए डिक्लेयर किया और 60 दिन का नोटिस दे दिया। तो जब नोटिस दे दिया उसके बाद, जब नोटिस उसको मिल गया बोरोवर को, उसके बाद में वो सेल लीज या कुछ डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, सिंपल है, ठीक है। आंटी पुलिस बुला लेगी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू असिस्ट सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब वो कुछ पंगेबाजी कर रहा है ये जो बोरोवर है, ठीक है, तो आप पुलिस की मदद ले सकते हो, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये प्रोवाइडेड फर्दर that if no order is passed by the chief metropolitan magistrate या district magistrate within the set period of 30 days, ठीक है। भाई वो कह देता है यार मेरे पास ये काम थोड़ी है, तो उसको 30 डेज के अंदर नोटिस पास करना होगा, ठीक है। फॉर रीजंस बियॉन्ड हिज कंट्रोल ही मे आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस राइटिंग फॉर द सेम पास द ऑर्डर विद इन सच फर्दर पीरियड बट नॉट एक्सीडिंग इन एग्रीगेट 60 डेज। मतलब कई बार क्या होता है, मान लो जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास पहुंच गए, बैंक पहुंच गया, ये ऐसा है जी ये पैसे नहीं दे रहा, हमें इसकी प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है। वो कहा यार हम यहाँ फालतू बैठे हैं, हमारे पास पहले ही बहुत काम है, ठीक है। तो 30 दिन तक वो होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, तो 60 डेज तक होल्ड कर सकते हैं उस एक्शन को, ठीक। फिर अगला आता है मैनर एंड इफेक्ट ऑफ टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट। अब आपने क्या किया, उसका मैनेजमेंट टेक ओवर कर लिया, सेक्शन 15। ये एआरसी और बैंक बाय अपॉइंटिंग डायरेक्टर और एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। इसमें किसी अपने डायरेक्टर को अपॉइंट कर देंगे या एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर देंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर व्हेन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ ए बोरोवर इज टेकन over by an ARC under section 9A or by a secured creditor under section 13(4), as the case may be, secured creditor may by publishing notice in newspaper, ठीक है। अब ये क्या करेगा, न्यूज़पेपर में नोटिस पब्लिश करेगा कि भैया हमने मैनेजमेंट टेक ओवर कर लिया, अब इस कंपनी के मालिक हम हैं, ठीक है। इन केस इन विच द बोरोवर इज ए कंपनी, ठीक है, टू बी द डायरेक्टर्स ऑफ दैट बोरोवर इन अकॉर्डेंस with the provisions of that act, or in any other case to be the administrator of the business of the borrower, ठीक है। ये है, तो अगर बोरोवर है, कंपनी है, तो उस केस में डायरेक्टर बन जाएंगे और दूसरे केस में ये एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे उस बिजनेस के, ठीक है। एक पब्लिक नोटिस इशू कर देंगे, पब्लिकेशन नोटिस, सिंहासन खाली करो। जो भी पर्सन्स ऑफिसर, जो भी पर्सन्स हैं, दे आर होल्डिंग ऑफिसर्स डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी है, भैया खाली करो, पैसे दिए नहीं तुमने, डायरेक्टर काहे के बने हुए हो, ठीक है। एंड इन एनी अदर केस ऑल पर्सन्स होल्डिंग एनी ऑफिस हैविंग पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ठीक है, इमीडिएटली बिफोर द पब्लिकेशन शैल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड देयर ऑफिस, उनकी छुट्टी हो गई, ठीक है। वेयर एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैनेजमेंट शैल बी डीम्ड टू बी टर्मिनेटेड, ठीक है। When any contract of management shall be deemed to be terminated, custody में ले लो, तो any contract of management between the borrower
and any director or manager thereof holding office as such immediately. अगर उसकी जो बोरोवर है उसकी मैनेजमेंट और उसके डायरेक्टर या मैनेजर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था बिफोर दिस नोटिस, वो टर्मिनेट मान लिया जाएगा। वो उस एग्रीमेंट, उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। जो डायरेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुए हैं इस सेक्शन में, दे विल टेक स्टेप्स, ठीक है, टू टेक इनटू देयर कस्टडी और अंडर देयर कंट्रोल, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो इफेक्ट्स है, जो एक्शनेबल क्लेम्स है, उसको अपनी कस्टडी में ले लेंगे। ठीक है। आगे, एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स ऑफ द पर्सन सो अपॉइंटेड फॉर द बोरोवर्स। इसमें क्या है, डीमिंग फिक्शन है फॉर डायरेक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर। जो भी डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं इन अकॉर्डेंस विद द अबाउ नोटिस, जो पब्लिक नोटिस में दिया गया था, ये डायरेक्टर, ये डीमिंग फिक्शन हो जाएगी, ये डायरेक्टर मान ले जाएंगे उस कंपनी के। ठीक है। और ऐसे जो भी डायरेक्टर है या जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, they shall only be entitled to access all the powers of the directors or as the case may be of the person exercising। ठीक है, तो उनके पास सारी पावर आ जाएंगी। ठीक है, डीमिंग फिक्शन हो गया। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ बोरोवर टेकन बाय द सिक्योरिटी क्रेडिटर। अब जो बोरोवर का मैनेजमेंट था, ये किसने ले लिया? अब सिक्योरिटी क्रेडिटर ने। तो शेयर होल्डर की पावर कम हो गई। ठीक है। तो where the management of the business of a borrower being a company as defined in Companies Act is taken over by the secured creditor, then notwithstanding contained anywhere such borrower, ठीक है, चाहे मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में कुछ भी लिखा हो, तो ये क्या करेंगे, ये किसी पर्सन को बोरोवर, किसी पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते उस कंपनी के शेयर होल्डर जिसका मैनेजमेंट सिक्योरिटी क्रेडिटर ने ले लिया है। तो शेयर होल्डर की पावर कम हो गई। ठीक है। कोई भी रेजोल्यूशन जो शेयर होल्डर पास करेंगे, इट शैल नॉट बी गिवन इफेक्ट अनलेस अप्रूव्ड बाय द सिक्योरिटी क्रेडिटर। ठीक है, ये वहां पर आ गया ना बंदा। नो प्रोसीडिंग फॉर द वाइंडिंग अप और फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिसीवर इन रिस्पेक्ट देयरऑफ shall lie in any court except with the consent of the security creditor। ठीक है। तो जो सिक्योरिटी क्रेडिटर है वो डायरेक्टर बन गया या वो एडमिनिस्ट्रेटर बन गए उस बिजनेस के। शेयर होल्डर्स की पावर कम हो गई। वो ना तो कोई डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते, ना कोई रेजोल्यूशन पास कर सकते विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सिक्योरिटी क्रेडिटर। ठीक है। ना ही कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते फॉर वाइंडिंग अप या अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ऑब्लिगेशन ऑफ सिक्योरिटी क्रेडिटर। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, कर्जदार ने पेमेंट कर दिया, उसके डायरेक्टर को बैठने दो, लेकिन अगर शेयर ले लिए तो फिर कंट्रोल वापस नहीं करेंगे। ठीक है। सिक्योर्ड क्रेडिटर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू रिस्टोर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर ऑन रियलाइजेशन ऑफ भाई उसको तो अपने पैसे लेने थे, जब उसने पैसे दे दिए हैं तो उसको वापस कर दो कंट्रोल। ठीक है। provided that if any secured creditor jointly with other secured creditor or any asset reconstruction company or financial institution has converted part of its debt into shares of a borrower company। भाई आपने अगर उस कंपनी के शेयर ले लिए और आपने उसका कंट्रोलिंग एसेट एक्वायर, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया, such secured creditor shall not be liable to restore the management of the business to such borrower। ठीक है। तो फिर उस केस में वापस नहीं होगा। ठीक है। नो कंपेंसेशन टू डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। ठीक है। सेक्शन 16। तो सेक्शन 16 क्या कहता है कि कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस भूल जाओ। हाँ, कोई ड्यूज बाकी है तो ले लो। ये इतनी सी लाइन जो है इसी में पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। तो कोई भी डायरेक्टर को कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मिलेगा। अगर कोई उनके ड्यूज है तो मिल जाएंगे, सिंपल। सेक्शन 17 क्या कहता है, एप्लीकेशन अगेंस्ट मेजर्स टू रिकवर सिक्योर डेट्स टू डीआरटी विद इन 45 डेज ऑफ द डेटा से टेकिंग सच मेजर। ठीक है। तो जो भी बोरोवर है, अगर भाई किसी ने उसका बिजनेस टेक ओवर कर लिया, कोई वहां पर डायरेक्टर बन गया या एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, अगर वो एग्रीव्ड है बाय एनी एक्शन टेकन अंडर सेक्शन 13(4), वो क्या करेगा, डीआरटी को जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकता है विद इन 45 डेज। ठीक है। प्रोवाइडेड that different fees may be prescribed for making the application by the borrower and the person other than the borrower। तो borrower भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और someone other than the borrower भी फाइल कर सकता है, लेकिन दोनों के लिए फीस अलग अलग है। एक्सप्लेनेशन क्या है, for the removal of doubts it is hereby declared that the communication of the reasons to the borrower by the secured creditor for not having accepted his representation or objection or the likely action of the secured creditor at the stage of communication of the reasons to the borrower shall not entitle the person including borrower to make an application to the DRT under this section।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि communication of the reasons to the borrower by the secured creditor for not having accepted his representation, और अब हमने 13(2) में क्या पढ़ा था? 13(2) में पढ़ा था कि जब ये नोटिस देता है सिक्योर्ड क्रेडिटर बोरोवर को, तो बोरोवर को ही रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। ठीक है, अब सिक्योर्ड क्रेडिटर ने बोरोवर को बताए थे कुछ रीजंस फॉर नॉट हैविंग एक्सेप्टेड हिज रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो इट शैल नॉट एंटाइटल द पर्सन टू मेक एन एप्लीकेशन टू द डीआरटी अंडर दिस सेक्शन। तो सिर्फ इसके लिए ही वो जो है एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, अगर सिर्फ यही रीजन है तो it is that the communication of the reasons to the borrower by the for not having accepted representation, ठीक है, shall not entitle the person including borrower to make an application to the, मतलब इसके अलावा कोई रीजन होना चाहिए। ठीक है, जो 13(2) की एप्लीकेशन में जब सिक्योर्ड क्रेडिटर ने बोरोवर को कहा था कि भाई आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर रिप्रेजेंटेशन या ऑब्जेक्शन, तो दैट कैन नॉट बी द रीजन फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन टू डीआरटी। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन तो सिंपल ही है, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, जहां पर सिक्योर्ड एसेट है, जहां पर बैंक है, जहां पर ब्रांच है। ठीक है, मेजर्स टेकन शैल बी इन कंप्लायंस, तो डीआरटी टू इंश्योर दिस। ठीक है, अदरवाइज इनवैलिडेशन एंड रिस्टोरेशन, जो डीआरटी है इट विल कंसिडर whether any of the measures referred to in section 13(4). 13(4) में क्या है? बेसिकली रिकवरी मैकेनिज्म है। तो 13(4) में जो भी एक्शन लिए गए बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर, दे आर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, अगर उसको लगता है कि भाई कुछ गलत एक्शन लिया तो इनवैलिडेट कर देगा, उनको रिस्टोर कर देगा। ठीक है, ये है, बस इतनी सी बात है, और उसको वापस दे देगा बोरोवर पोजीशन। रेमेडीज ऑप्टेड बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर, किराएदार बैठा दिया कर्जदार ने तो उसको खाली करना होगा। कई बार क्या होता है कि वो जो बोरोवर है, बोरोवर ने क्या किया, वहां पर कोई किराएदार को बैठा दिया। ठीक है, वो किराएदार अलग से कोई सूट फाइल कर देता है। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि भाई इफ द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डिक्लेयर्स द रिकोर्स टेकन बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर नॉटविथस्टैंडिंग इन। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि कई बार जो मान लो टेनेंसी क्रिएट कर दी किसी बोरोवर ने, ठीक है ना, तो उसको भी खाली करना पड़ेगा सरफेसी। मतलब ये प्ली नहीं ले सकते कि भाई ये तो किराएदार है ना, या इसके साथ ये एग्रीमेंट है इतने पीरियड का। तो वेयर एनी पर्सन इन एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 क्लेम्स एनी टेनेंसी या लीज होल्ड राइट्स, कि भाई मेरे पास तो लीज राइट है, मेरे पास तो टेनेंसी है, तो डीआरटी सब देखेगा, एग्जामिन द फैक्ट्स। ठीक है ना, और ये क्या करेगा कि भैया ये खाली करो। ठीक है, ये है, क्योंकि जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वहां कुछ और बातें लिखी गई हैं, यहाँ पर कुछ अलग है। ठीक है, तो उस केस में देखना पड़ेगा ये जो टेनेंसी राइट है कब क्रिएट किया। पता चले जब नोटिस ऑफ डिफॉल्ट आया उसके बाद बिठा दिया। ठीक है, कई बार शरारत करते ना बोरोवर भी कि भाई आपको नोटिस आ गया कि हम प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेंगे, वो किराएदार बिठा दे उसमें। वो देखना पड़ेगा कि ये जो नोटिस क्रिएट किया गया है क्या इट इज क्रिएटेड आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ नोटिस ऑफ डिफॉल्ट एंड डिमांड बाय द बैंक, इज कॉन्ट्रेरी टू द टर्म्स ऑफ मॉर्गेज। मॉर्गेज की टर्म्स जब मॉर्गेज की थी अपनी प्रॉपर्टी उसमें क्या लिखा था, इफ इट इज कॉन्ट्रेरी टू सेक्शन 65 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, या वो टेनेंसी एक्सपायरी हो चुकी है, तो उस केस में वो खाली करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात। फिर टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ एन एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल विद इन 60 डेज, टोटल पीरियड नॉट टू एक्सीड 4 months। तो ये जो डीआरटी को एप्लीकेशन लगाई है ये एज सुन एज पॉसिबल डिस्पोज ऑफ की जाएगी और विद इन 60 डेज की जाएगी, और मैक्सिमम टोटल टाइम जो है इसमें 4 महीने से ज्यादा नहीं लग सकता। ठीक है, फिर ऑर्डर बाय अपीलेंट ट्रिब्यूनल फॉर एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द पेंडिंग एप्लीकेशन। 4 महीने भी बीत गए, 4 महीने के बाद आप डीआरटी में जा सकते हो। ठीक है, इफ द एप्लीकेशन इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ बाय डीआरटी विद इन द पीरियड ऑफ 4 months, ठीक है, तो आप डीआरटी में एप्लीकेशन लगा सकते हो। ठीक, इतनी सी बात है। आगे सेक्शन 17A J&K की बात करता है। तो J&K में ये पावर है डिस्ट्रिक्ट जज की, जैसे यहाँ पर डीआरटी है वहां पर डिस्ट्रिक्ट जज है, जैसे यहाँ पर डीआरटी है वहां पर हाई कोर्ट है। ठीक, सिंपल। कंडीशन क्या है, अपील से पहले 50% जमा करवाओ, और
रिड्यूस हो सकता है 25% तक, ठीक है। अपील से पहले 50% जमा कराओ, चलो 25% करवा दो अगर नहीं करा सकते, ठीक। रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ये वैलिडेशन ऑफ फीस लेविड, 2004 से अगर कोई पहले फीस दे रखी है तो उसको एडजस्ट कर लो, ठीक है। एनी फीस लेविड एंड कलेक्टेड फॉर प्रेफरिंग एन अपील टू DRT और DRAT बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सरफेस सी shall be deemed always to have been levied and collected in accordance, ठीक है भाई। ऐसे है ना, ये आया आपका, ये जो सरफेस एक्ट 2002 में आया था, इसमें एक अमेंडमेंट की गई थी 2004 में। उसमें कहा था कि भाई इससे पहले क्या होता था, DRT में चलते थे केसेस, ठीक है ना। तो वो जो DRT में आपने फीस जमा करा रखी है, अब ये सरफेसी एक्ट आ गया, तो अगर DRT में जो फीस जमा करा रखी है उसको एडजस्ट कर लो, इतनी सी बात है इसमें, ठीक है। मतलब डबल डबल आपने फीस नहीं देनी। अपील टू हाई कोर्ट, ठीक है, जैसे JNK में हाई कोर्ट है, यहाँ पर बाकी अदर देन JNK क्या है, वो आपका DRAT है। यहाँ पर भी वही है, 25%, 50% कहते हैं नॉर्मली, 25% तक कर लेते हैं। राइट टू लॉज है कैविएट, पेचे में लंगर डालना, जज साहब अपील की सुनवाई में मुझे भी मौका देना। ये लोग क्या होते हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टी होते हैं वो कैविएट फाइल कर देते हैं। ऐसा है जज साहब, ये केस जो सुन रहे हो ना, इसमें मेरा भी इंटरेस्ट है, तो मुझे भी जो है, मुझे भी सुन लेना। फाइलिंग ऑफ वेयर एन एप्लीकेशन एन अपील इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड और हैज बीन मेड, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर भी या जिसका भी राइट है, एनी पर्सन क्लेमिंग ए राइट टू अपीयर बिफोर द ट्रिब्यूनल और कोर्ट, ठीक है ना, वो क्या करेगा, ही विल लॉज ए कैविएट, ठीक है। अब अगर कैविएट का नोटिस दे दिया, तो कैविएट अगर लॉज कर दिया, लंगर डाल दिया, तो रजिस्टर्ड एडी नोटिस दो दूसरी पार्टी को, ठीक है। तो जिसने भी कैविएट लॉज किया है उसको भी नोटिस देना पड़ेगा। The secured creditor by whom the caveat has been lodged hereinafter, ठीक है ना, it shall serve notice of the caveat by registered post by on the person by whom the application has been or is expected to be made, ठीक है, सिंपल बात। Any person by whom the caveat has been lodged shall serve notice of the caveat by registered post on the person by whom the application, तो जिसने caveat लॉन्च किया है वो एप्लीकेंट को नोटिस देगा, और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो जिसने कैविएट लॉन्च किया उसको नोटिस देगा। मतलब वो भी थर्ड पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। नोटिस ऑन द कैविएट और बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जज साहब भी बुलाएंगे लंगर डालने वाले को, जिसने भी कैविएट लॉन्च किया है उसको भी बुलाया जाएगा, ठीक है। फर्निशिंग ऑफ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट, एप्लीकेंट CC जो है लंगर डालने वाले को भी करेगा। तो जैसे पतंग होती है ना, पतंग में 2 आदमी पतंग उड़ा रहे हैं तो तीसरा आदमी उसमें लंगर डाल देता है बीच में, तो ये वही कहानी है। तो एप्लीकेंट जो भी है वो CC कैविएट लॉन्च करने वाले को भी देगा, ठीक है। कैविएट की वैलिडिटी कितनी है, 90 दिन तक, ठीक है। तो where a caveat has been lodged, such caveat shall not remain in force after the expiry of the period of 90 days from the date on which it was lodged, unless the application or appeal has been made before the expiry of the period. 90 दिन तक कैविएट काम करेगा, उसके बाद में दोबारा एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। फिर राइट ऑफ बोरोअर टू रिसीव कंपेंसेशन एंड कॉस्ट इन सर्टेन केसेस, गलत पोजीशन में कर्जदार को भरपाई का अधिकार है, ठीक है। इफ द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज स्टेट, ठीक है ना, अगर उनको लगता है कि भाई ये पोजीशन जो है ठीक तरह से नहीं लिया गया, सिक्योर्ड क्रेडिटर को कहेगा भाई पोजीशन वापस करो, ठीक है, और उसको कंपेंसेशन का अधिकार मिल जाएगा, सिंपल। सेंट्रल रजिस्ट्री, सेंट्रल रजिस्ट्री बहुत सिंपल है। सेंट्रल रजिस्ट्री चैप्टर 4 में दी गई है। इसमें जैसे हमने पढ़ा था IBC में NESL, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, यहाँ पर भी वही काम है। सेंट्रल रजिस्ट्री का काम क्या है कि भाई कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पर होगा, और यहाँ पर अगर इंफॉर्मेशन दी गई है उसके लिए अलग राइट्स हैं, यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई उसको अलग राइट्स है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये बाय नोटिफिकेशन इट विल सेट अप ए सेंट्रल रजिस्ट्री। हेड ऑफिस कहां पर होगा, जहां पर ये स्पेसिफाई करेंगे, और दिल्ली से बढ़िया क्या स्पेसिफाई होगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, ठीक है, ये टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन भी इसकी डिसाइड करेंगे। ये सेक्शन 8 कंपनी होगी, ठीक है, और इसमें शेयर होल्डिंग होगी 51% बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेलेक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक एंड नेशनल हाउसिंग बैंक ऑल्सो बीइंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। ऑब्जेक्ट इस कंपनी का क्या होगा, इट विल बी टू मेंटेन एंड ऑपरेट रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ओवर प्रॉपर्टी, जो भी सरफेसी एक्ट में दिया गया है।
तो ये इसका मेन काम होगा। ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सिस्टम विद सेंट्रल रजिस्ट्री, सेक्शन 20A। तो सेक्शन 20A क्या कहता है? सेक्शन 20A कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डेटाबेस क्रिएट करना है, सेंट्रल डेटाबेस, ठीक है ना। तो वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ या दूसरी अथॉरिटीज के साथ इट में ऑपरेट, जो भी रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑपरेट करती हैं जो प्रॉपर्टी का, ठीक है ना, उनके साथ इंटीग्रेट कर सकती है डेटाबेस को, ये है। फिर डेलीगेशन ऑफ पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये पावर्स किसी को भी रिजर्व बैंक को डेलीगेट कर सकती है, ठीक है। सेंट्रल रजिस्ट्रार एक अपॉइंट होगा, ठीक है। फिर 22 क्या कहता है? रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो एक सेंट्रल रजिस्टर बनाया जाएगा, उसमें ये सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये सारी चीजें रहेगी। फाइलिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन होगी ना इसमें, जो हमने सरफेसी में पढ़ी, ये सारी ट्रांजैक्शन इसमें रजिस्टर की जाएंगी, ठीक है। मॉडिफिकेशन अगर कोई है, मान लो कोई चार्ज खत्म हो गया, तो वो भी मॉडिफिकेशन भी इसमें रजिस्टर की जाएगी। एआरसी और सिक्योर्ड क्रेडिटर टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। कोई भी अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो गया, जैसे सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज होता है वो एमसीए के साथ कराना पड़ता है ना रजिस्टर, इसी तरह से यहाँ पर अगर कोई सेटिस्फेक्शन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, तो जो एआरसी है, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, इट विल रिपोर्ट, ठीक है, विद इन 30 days, ठीक है। राइट टू इंस्पेक्ट रिकॉर्ड्स, ये जो इसके रिकॉर्ड है, इट विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ एनी फीस, ठीक है। रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन मैटर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन एंड सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है कि भाई अगर उसमें कोई भी गलती हो गई तो उसको ठीक कर सकती है, ठीक है। ये है, इतना ही है बस। फिर रजिस्ट्रेशन बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये चैप्टर 4A में आ गए। चैप्टर 4A में कहता है कि जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर है, जो अदर क्रेडिटर है, वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इसमें, सेंट्रल रजिस्ट्री में, ठीक है। ऑन पेमेंट ऑफ एनी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी ड्यू रीपेमेंट ऑफ एनी फाइनेंस। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर, जो अदर क्रेडिटर है, वो सेक्शन 26B में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी रजिस्टर करा सकता है, लेकिन उसको इस एक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। एक क्रेडिटर अदर, क्योंकि ये जो सरफेसी एक्ट है सिक्योर्ड क्रेडिटर पर ही अप्लाई होता है, ठीक है, अनसिक्योर्ड पर अप्लाई नहीं होता, हमें मालूम है। सिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन ए सिक्योर्ड क्रेडिटर फाइलिंग पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, ठीक है ना, इट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज एनी राइट्स ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है। अटैचमेंट ऑर्डर कोई है तो उसके भी पर्टिकुलर रजिस्टर करवाने पड़ेंगे आपको, ठीक है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। तो अगर कोई अटैचमेंट ऑर्डर इशू कर दिया है तो वो भी आपको रजिस्टर कराना है। अटैचमेंट ऑर्डर में अगर क्लेम मिल गया तो ऑर्डर की कॉपी आपको जमा करानी है फीस के साथ, ठीक है, ये है। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर यहाँ पर आपने रजिस्टर करा दिया तो ये पब्लिक नोटिस मान लिया जाएगा, ठीक है। तो रजिस्टर की हुई ट्रांजैक्शन को बेनिफिट मिलेगा किसी भी सब्सिक्वेंट ट्रांसफर के मुकाबले, ठीक है। अब आपने अपना जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है या जो अटैचमेंट ऑर्डर है यहाँ पर रजिस्टर करा दिया है, ठीक है ना, तो इट विल गेट बेनिफिट, ठीक है, एनी ओवर एनी सब्सिक्वेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड अपॉन सच प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर राइट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज, कोई रजिस्ट्रेशन अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया तो एनफोर्समेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जबरदस्त जरूरी है करवाना यहाँ पर, क्योंकि फीस मिल रही है गवर्नमेंट को, तो नो रजिस्ट्रेशन, नो एनफोर्समेंट। फिर प्रायोरिटी टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रायोरिटी ओवर गवर्नमेंट ड्यूज एक्सेप्ट अंडर आईबीसी। तो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, द डेट्स ड्यू टू एनी सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बी पेड इन प्रायोरिटी ओवर ऑल अदर डेट्स एंड ऑल रेवेन्यूज एक्सपेंसेस पेएबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे हमें आईबीसी में पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ड्यूज हैं उससे भी ऊपर प्रायोरिटी मिलती है किसको? सिक्योर्ड क्रेडिटर को, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर ने अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट को रजिस्टर करा दिया है तो इट विल बी पेड ओवर द गवर्नमेंट ड्यूज, ठीक है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हैं, ठीक है। अब आपने रजिस्टर नहीं करवाया, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाया, तो उस केस में पेनल्टी आपके ऊपर 5,000 रुपीज पर डे। ऑफेंसेस, अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन करता है, कोई अटेम्प्ट करता है, तो इसमें 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट है, फाइन है, बोथ, ठीक है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ओनली ऑन रिसीट ऑफ कंप्लेंट फ्रॉम ऑफिसर ऑफ, क्योंकि ये जो सेंट्रल रजिस्ट्री है इसको भी कंट्रोल कौन कर रहा है? आरबीआई कंट्रोल कर रहा है। तो
कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कब माना जाएगा? ओनली ऑन रिसीट ऑफ कंप्लेंट फ्रॉम ऑफिसर ऑफ आरबीआई और सेंट्रल रजिस्ट्री। तो जो आरबीआई के ऑफिसर ने कोई कंप्लेंट की या सेंट्रल रजिस्ट्री ने कोई कंप्लेंट की, तभी ये कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस माना जाएगा इस केस में। ठीक है। फिर where any asset reconstruction company or any person fails to comply with any direction issued by रिजर्व बैंक, तो उस केस में क्या है कि मॉनेटरी पेनल्टी भी लग सकती है 1 करोड़ रुपए तक या ट्वाइस द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन सच फेलियर। और सब्सिक्वेंट ऑफेंस में क्या है कि इट में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज फॉर एवरी डे। ठीक। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक शो कॉज नोटिस इशू करेगी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी, और जो पेनल्टी अगर लग गई तो पेनल्टी हैज टू बी पेड विद इन 30 डेज। ठीक है। अदरवाइज जो क्या होगा कि फेलियर ऑफ विच द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल कैंसल इट्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो वो जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है। मतलब जो एआरसी ने जो भी चीजें एक्वायर की हैं उसको रजिस्टर करवाना जरूरी है। अगर नहीं कराएगी तो पेनल्टी लग सकती है, और पेनल्टी आपको 30 दिन के अंदर देनी है, नहीं दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। ये चीज है इसमें दी गई। अपील भी कर सकते हो आप विद इन 30 डेज। और जो अपीलेट अथॉरिटी है, अपीलेट अथॉरिटी में एंटरटेन दी अपील आफ्टर 30 डेज ऑल्सो, अगर सफिशिएंट कॉज शोन है तो। ठीक है। और जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक है, इट में डेजिग्नेट सच ऑफिसर और कमिटी ऑफ ऑफिसर्स एज इट डीम्स फिट टू एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ अपीलेट अथॉरिटी। तो अपीलेट अथॉरिटी कौन बनाएगा? वो भी जो रिजर्व बैंक का जो सेंट्रल बोर्ड है वो अपीलेट अथॉरिटी बनाएगा। ठीक है। उस कमिटी में, उस अपीलेट अथॉरिटी में कोई ऑफिसर या कमिटी ऑफ ऑफिसर्स हो सकता है। ठीक है। रिकवरी ऑफ पेनल्टीज, तो जो भी पेनल्टी है इट इज टू बी रिकवर्ड विद इन 30 डेज। फिर मिसलेनियस कुछ प्रोविजंस है, ये हम देख सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है। ऑफेंसेस बाय कंपनीज, तो इसको आप देख लीजिएगा, सिविल कोड का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद में सिक्योरिटी इंटरेस्ट के एनफोर्समेंट के कुछ रूल्स हैं। ठीक है। कि ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन है? ऑथराइज्ड ऑफिसर चीफ मैनेजर होगा पब्लिक सेक्टर बैंक का। ठीक है। या जिसको अथॉरिटी दी गई है। डिमांड नोटिस कैसे इशू करना है? आपको डिलीवरी करनी है, ट्रांसमिशन करना है। ठीक है ना, वो सब दिया हुआ है कि आपको वहां चिपकाना है। ठीक है ना, आपको पब्लिश भी करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे देना है, ब्रांचेस पे देना है, और अगर मोर देन 1 बोरोवर है तो हर एक बोरोवर को देना है नोटिस, 13(2) का नोटिस। ठीक है। रिप्लाई बाय रिप्रेजेंटेशन, रिप्लाई टू रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, तो ये सारा आप देख सकते हैं, बात नहीं है। तो ये आपको क्या करना है, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी में तो क्या, पंचनामा बनाओगे दो विटनेस की, दो विटनेस की प्रेजेंस में, और आप प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लोगे। ठीक है ना। और आफ्टर टेकिंग पोजीशन यू हैव टू मेक एन इन्वेंटरी ऑफ प्रॉपर्टी, और उसकी एक कॉपी बोरोवर को भी दोगे। ठीक है। फिर वैल्यूएशन करवाना है आपको, फिर उसकी सेल करनी है। सेल जो है पब्लिक ऑक्शन से होगी या प्राइवेट ट्रीटी से भी हो सकती है। ठीक है। और जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो बोरोवर को 30 दिन का नोटिस देगा। ठीक है। अगर वो पैसे वापस भी कर सकता है, अगर वो पैसे वापस देगा तो ऑक्शन रुक जाएगी। ठीक है। फिर जब ऑक्शन हो जाएगी तो सर्टिफिकेट ऑफ सेल इशू हो जाएगा। ठीक है। अगर इमूवेबल है तो इमूवेबल में भी क्या करेगा, जो सिक्योर्ड ऑथराइज्ड ऑफिसर, इट शैल टेक और कॉज टू बी टेकन पोजीशन बाय डिलीवरिंग ए पोजीशन नोटिस प्रिपेयर्ड एनुअली टू द बोरोवर। ठीक है। तो वहां पर उसकी प्रॉपर्टी पर, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर वो नोटिस चिपका देगा कि भाई ये जो है हम सेल करने जा रहे हैं। ठीक है। तीस दिन का नोटिस देगा उसको फॉर सेल, ऑथराइज्ड ऑफिसर बोरोवर को। दो लीडिंग न्यूज़पेपर्स में नोटिस छपेगा ये। ठीक है। उसमें डिस्क्रिप्शन आएगी, ये सारी चीजें, रिजर्व प्राइस क्या है, टाइम एंड प्लेस ऑफ पब्लिक ऑक्शन क्या है, अर्नेस्ट मनी अगर कोई है तो क्या चीज है। ठीक है। फिर टाइम ऑफ सेल क्या होगा, इशू ऑफ सेल सर्टिफिकेट, डिलीवरी ऑफ पोजीशन, ये सारा प्रोसीजर है, रूल्स है, आप इसको पढ़ सकते हैं। 25% आपको इमीडिएटली जमा कराना है, बैलेंस आपको 15 दिन के अंदर जमा कराना है। ठीक है। और कई बार क्या होता है, वो जो प्रॉपर्टी सोल्ड है वो, उस पर ऑलरेडी कोई मॉर्टगेज है। ठीक है ना, तो जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो क्या करेगा, इट में अलाउ द परचेजर टू डिपॉजिट विद द मनी रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द इनकम्बरेंसेस। ठीक है।
एंड एनी इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, अगर कोई सरप्लस है तो सरप्लस उसको वापस दे देंगे। अब ये जो जैसे हमने उसका बिजनेस एक्वायर किया बोरोवर का, तो जो मैनेजर अपॉइंट किया हमने बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, इट शैल बी डीम्ड टू बी एन एजेंट ऑफ द बोरोवर। ठीक है, और बोरोवर ही उसके लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल होगा, नेचुरल है। प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ सिक्योर डेट एप्लीकेशन टू डीआरटी आइदर पर्सनली और थ्रू रजिस्टर्ड पर्सन। आपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी एक्सरसाइज कर लिया, उसकी प्रॉपर्टी भी बेच दी, फिर भी पैसे पूरे रिकवर नहीं हुए, फिर डीआरटी में एप्लीकेशन लगाओगे बैलेंस लेने के लिए। ठीक है, फीस फॉर एप्लीकेशन क्या है? फीस में भी रिमिटेड थ्रू क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट डाउन ऑन बैंक और इंडियन पोस्टल ऑर्डर। ये सारे अपेंडिक्स दिए हुए हैं, इसमें फीस दी गई है। उसके बाद में एक ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल में इंटरप्ले दिया गया है कि जो आईबीसी है और सरफेसी, इसमें क्या इंटरप्ले है। देखिए, आईबीसी आने के बाद में सब लोगों ने ये सोचा भाई सरफेसी से भी बेटर है आईबीसी। वह तो सरफेसी भी बहुत अच्छा लॉ था। सरफेसी में क्या था कि आपको कोर्ट वगैरह में जाना ही नहीं है, सीधा प्रॉपर्टी एक्वायर कर लो उसकी। ठीक है, लेकिन जब से आईबीसी आया तो लोग आईबीसी प्रेफर करने लगे। अभी क्या हो गया, अब आईबीसी में जो ये कोविड पीरियड में क्या है, थोड़ा सा इसको होल्ड पे रख दिया, तो अब लोग दोबारा इसमें जाने लग गए सरफेसी में। ठीक है, तो ये भी मैंने इसके अंदर ही ऐड कर दिया है, ये जो आर्टिकल था, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, तो लेंडर्स वर प्रेफरिंग आईबीसी ओवर सरफेसी। ठीक है ना, क्योंकि पहले तो जो सरफेसी एक्ट जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल में क्या था कि गवर्नमेंट ड्यूज प्रायोरिटी पे थे। बाद में उन्होंने अमेंड किया, आईबीसी आने के बाद में सरफेसी एक्ट में भी अमेंडमेंट हुआ, तो सरफेसी एक्ट में क्या आ गया, गवर्नमेंट ड्यूज को नीचे वाटरफॉल मैकेनिज्म में नीचे रखा गया। ठीक है ना, तो लेकिन फिर भी आईबीसी में जो है रिजल्ट्स बेटर थे। तो कंक्लूजन इसमें क्या निकलता है? कंक्लूजन में ये है कि जो ओवरराइडिंग प्रोविजंस अंडर द आईबीसी कपल्ड विद द इंपोजिशन ऑफ मॉरेटोरियम ऑन एन एक्शन अंडरटेकन, तो उसमें ज्यादा चांस है। ठीक है, लेकिन सरफेसी भी अच्छा है। सरफेसी क्या है, अगर एक ही लेंडर इन्वॉल्व है तो। ठीक है ना, तो IBC still attracts more lenders, especially since it now been established that secured financial creditors have supremacy and the issue of attachment of assets has been resolved। तो ये है, इसको आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा इस आर्टिकल को। तो ये थोड़ा इंटरप्ले की बात करता है कि आईबीसी और सरफेसी में कौन सा बेटर है। तो ये था हमारा सरफेसी लॉ। मेरे हिसाब से मैंने काफी टाइम इसमें ले लिया और आपको पूरा समझा दिया। नाउ आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।